Good morning, children. How are you? Fine. Good. Ready with your textbook? हाँ? टेक्स्ट ले ली है क्या? चलो झड़प करो, झड़प करो. Okay? Good. So, we are in lecture number 5 of chapter 8. That is framing of our constitution and its features. Now see children, before moving to lecture number 5, we will go for recap of lecture number 4. In lecture number 4, I have explained you about the pillars of democracy. Constitution. 3 pillars, main 3 pillars. That is democracy. I have explained you in detail what is meant by democracy. How democracy survives. What is the term for democracy? Right? For the people, of the people, by the people. ऐसे मैंने बोला था ना, सिर्फ बोलने से ये काम नहीं चलता, करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि वास्तव में डेमोक्रेसी क्या है. तो ये सब मैंने आपको बताया. Then we have talked about sovereignty. Sovereignty means India is totally independent, internally and externally. No external aggression, no external boundings, and no external pressure can shook India. India is free to frame its all policy. Right? India is free internally and externally. No interference. Sovereignty. Then we have talked about secularism. What is meant by secularism? Sarva dharma sambhavna. All religion are respected. Government does not sponsor any religion. Government does not show bias towards any religion. Equal opportunities to all. And that is why India is called a secular nation. And due to this secularism, we have gained name and fame. But you see children, we are a people having 137 crore population. 137 crore. Such a huge nation. Okay, we can say China is ahead in our population, but China have some predominant policies. It is not a multicultural country. World knows India as a multicultural country. ऐसा नाम चाइना का नहीं है. कितने धर्म के, जाति पाति के लोग हैं भारत में. सबका अपना अपना कल्चर, सबका अपना ट्रेडिशन. फिर भी हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. है समझ में? तो these are the things which have highlighted a concept of secularism. That was the 3 main pillars. Then we have talked about basic features of our constitution. The very first basic feature of our constitution was a constitution is a written document. It is a written document. To govern such a huge nation, every day thousands of things arises. It is not easy to govern a nation. Thousands of things, social, political, economical, thousands of things. And each and everything is decided according to constitution. So we are supposed to be in the limit of constitution. So our constitution is a written and elaborated part.
It is a written document. Second, we have studied size of the constitution. The numbers were given. Our constitution is divided into 22 sections and 12 appendix. Currently, I am talking about current. First, when it was framed, there were 8 appendix, but slowly added and subtracted, it came to 12. At present, there are 12 appendix and 22 sections. If you mix up together all these things, it comes to 395 articles. So in short, I can say our constitution consists 22 sections, 395 articles and 12 appendix. So this is the size of a constitution we have studied. Then we have studied about single citizenship. You know what is meant by single citizenship? India is divided into small states as a part of smooth administrative process. Currently we are having 29 states and 6 union territories. I'm not talking about Jammu Kashmir. Right? But after 2019, that is 5th August, when Jammu Kashmir was merged with India, now India stands as a whole nation, because at present, after removing Article 370 from Jammu Kashmir, which granted independent status to Kashmir, after 70 years, that article was removed. And Jammu Kashmir became union territory. And possibly within short span of time, it will turn into state. शायद विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की चुनाव भी आ सकते हैं, कि मोदी साहब ने ये किया था. बराबर है. You have seen the episode of 5th August 2019. क्या हुई थी, कितना पाकिस्तान बौखलाया था. कश्मीरी नेताओं ने कई उछाल लगाए थे, क्योंकि सब राजकारण की दुकान बंद हो गई थी. 17 साल तक 70 साल तक हमको लूटा गया था. हमारे पैसे से, मतलब हमारे टैक्स के पैसे से वो लोग उधर अय्याशी कर रहे थे. एक बार मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में से 370 की कलम एब्रोगेट होने से सिर्फ 3 परिवारों को नुकसान हुआ है. एक तो शेख अब्दुल्ला का परिवार, जिसका बेटा है फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा है ओमर अब्दुल्ला. बाप बेटे दोनों नोच के कश्मीर को खाया था. दूसरा परिवार था मुफ्ती परिवार, राइट, जिसकी डॉटर आज पॉलिटिक्स में एक्टिव है, मुफ्ती महबूबा. और तीसरा परिवार आप सब जानते हो, जो दिल्ली में राजगादी की आस में लगाए बैठा है, कब वापस सत्ता में आ जाए. क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के राजा हैं, हम हिंदुस्तान पे राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं. पूरी दुनिया में से राजाशाही चली गई है, लेकिन आज भी कई लोग वो ख्वाब में जीते हैं, हम एक दिन राजा बनेंगे, हम हिंदुस्तान के राजा हैं और हिंदुस्तान की प्रजा हमारे गुलाम है. देखने तो कोई ख्वाब, उसमें पैसा क्या देना पड़ता है. टू सी द ड्रीम्स, डज इट कॉस्ट एनीथिंग? सपना देखने में कोई पैसा लगता है क्या? कोई चार्ज लगता है क्या? कोई टैक्स लगता है क्या? देखो, मैं भी सपना देखता हूं, आप भी सपना देखते हो, देखने दो.
लेकिन ये सब राजकारण की बातें हैं. coming back to our topic, single citizenship. Now in US there is two type of citizenship, one state citizen and सेंट्रल, दैट इज कॉल्ड यूएस सिटीजन. अगर मान लो कि यूएस के आप किसी भी स्टेट में रहते हो तो आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होगी. एक अपने स्टेट की, जो मान लो आप मिसूरी में रहते हो या डलास में रहते हो या टेक्सास में रहते हो, तो आपके पास उधर की सिटीजनशिप होगी. और सेकंड जो सिटीजनशिप होगी वो आप यूएस के सिटीजन होंगे. बट इन इंडिया इट इज नॉट सो. वी आर ऑल इंडियंस, वी आर होल्डिंग सिंगल सिटीजनशिप, जिसका प्रूफ है हमारा आधार कार्ड. यूआईडी नंबर बोलते हैं जिसे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. हम चाहे गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है, राजस्थानी है, कोई भी है, लेकिन हमारी सिटीजनशिप तो इंडियंस ही है. बराबर है? ये बात सही है? ओके. तो ये बात इधर तक मैंने पढ़ाया था आपको, राइट. अभी आगे चलते हैं. अ सेंटर विद स्ट्रॉन्ग फेडरेशन. वी आर हैविंग टू सेट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इज गवर्न बाय लोकसभा, जिसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज governed by legislative assembly or legislative council. मैक्सिमम स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं. कई स्टेट में विधान परिषद में, देखो महाराष्ट्र है, यूपी है, ऐसे कई स्टेट में विधान परिषद भी होती है. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों जगह इलेक्शन ही होता है, कहीं सिलेक्शन नहीं होता है समझ में. तो सारे स्टेट्स सेंटर के कहने पे चलते हैं. कोई भी स्टेट को कि किसी भी प्रकार की अनबन होती है सेंटर के साथ, तो वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता कि भाई चलो आपके साथ मेरे को नहीं रहना है, अच्छा नहीं लगता, हम अलग हो जाते हैं. तो हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाएगा. गुजरात अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा, राजस्थान अलग हो जाएगा, महाराष्ट्र अलग हो जाएगा, तो इंडिया कहां बचा? ऐसा नहीं है. स्टेट सेंटर इज गवर्निंग ऑल द अथॉरिटीज ऑफ स्टेट. मतलब सेंटर बाप है तो स्टेट बेटा है. और बेटा, मैंने आपको बोला है लास्ट लेक्चर में, बेटा कितना भी बड़ा हो ले, अपने बाप से कभी नहीं बड़ा होता. बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है समझ में? Very simple example. So that is my fourth concept. Okay? India is a union of states. There is nowhere any reference of the word federal in the constitution. Union of states is the center used for India. By the use of this word, union, a permanent and irreversible relationship between union and component of state is indicated. There is irreversible relation. चोली दामन का साथ है, अलग नहीं हो सकते, साथ ही रहना पड़ता है तो ही इंडिया बनेगा. वरना तो सबको अलग होना है, सबको राजा बनना है, ऐसे थोड़ी चलता है. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज अ राइट टू सिडिक इट. सिडिक मीन्स मूव अवे फ्रॉम इट. कोई भी स्टेट अपनी मनमर्जी से अलग नहीं हो सकता. मैंने भी बोला ना, सबको अपना अपना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं चलता भैया. हाँ, थस इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, येट इट हैज सम एलिमेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. सेंटर बाप है, फेडरल स्ट्रक्चर. आप कहीं देखते होंगे, कई जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं,
कई व्हीकल्स पे ऐसे लिखे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कई व्हीकल्स पे ऐसा लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही बात है, समझ में? सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। आया समझ में? इन इंडियन फेडरेशन देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट and every government, state government is responsible to central government. State government कितनी भी powerful हो, they are liable to answer to a state government, central government. That means central government commands the position in every way. Central government dominates in every way, and that is why चीफ मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का। ऑल द चीफ मिनिस्टर इज बाउंडेड टू आंसर टू प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टूड? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मार्क्ड एरियाज ऑफ फंक्शनिंग बोथ काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कौन सी गवर्नमेंट को कौन सा काम करना है। आया समझ में? कौन सी गवर्नमेंट को कौन सा काम करना है, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, किसकी जिम्मेवारी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। इट इज क्लियरली डिमार्केटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आ गया? पक्का मार्किंग करना है भैया? गुड। द कॉन्स्टिट्यूशन demarks the power of central and state government into different list of subjects. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों के हिस्से में आते हैं, और इसके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सेंटर और स्टेट के दायरे में नहीं आते, लेकिन डायरेक्टली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। फिर मैं बोल रहा हूं, ऐसे कई डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। कई डिपार्टमेंट में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें सेंटर का डोमिनेशन होता है, लेकिन टाइम टू टाइम स्टेट का भी राय लिया जाता है। राइट? सो लेट अस स्टडी दैट। यूनियन लिस्ट, यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने डिपार्टमेंट होते हैं? नाउ अंडरलाइन, यूनियन लिस्ट कंप्राइज ऑफ 97 सब्जेक्ट्स। 97 सब्जेक्ट मतलब आप जो लोग पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट की बात नहीं है। सब्जेक्ट मतलब डिपार्टमेंट, राइट? 97 सब्जेक्ट्स। Subjects of national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post, and telegram are included in union list. बराबर है? They are included in union list. So ultimately, these are the subjects where central government dominates. मान लो हमारी डिफेंस है, तो डिफेंस डायरेक्टली कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफेंस रिलेटेड कोई भी मशवरा है, कोई भी खरीदी है, एक्सपांशन है, कुछ भी है डिफेंस रिलेटेड, उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं कर सकता।
क्योंकि उसकी राय नहीं ली जाती, क्योंकि वो देश का सवाल होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। मान लो रेलवे है, तो रेलवे, इंडियन रेलवेज का दूसरा नाम क्या है? भारतीय रेल। कई सारे बच्चे लोग के मदर या फादर रेलवे में जॉब करते होंगे। आप घर पे पूछना, जिसके मम्मी पापा इधर कोई रेलवे में है तो आप पूछना, वो पापा या मम्मी बताएंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, क्योंकि भारतीय रेल है। हाँ, डिविजन्स अलग अलग है, नॉर्दर्न रेलवेज एंड सदर्न रेलवेज एंड वेस्टर्न रेलवेज एंड फ्रंटियर रेलवेज, बट दैट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन चाहे वो वेस्टर्न रेलवे हो, सदर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे, कोई भी रेलवे हो, इट इज कॉल्ड भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज। सेम वे पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, राइट? एटॉमिक एनर्जी है, बैंकिंग है। जो बैंकिंग है वो पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। बैंकिंग का जो एक्ट है, क्योंकि सारी बैंकों को कौन गवर्न करता है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक इज कॉल्ड द प्राइम बैंक, बराबर है? अच्छा, सारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक. लेट मी एलोबरेट. प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक मीन्स जो मनी मार्केट में से, कैपिटल मार्केट में से पैसा उठा के बिजनेस करते हैं. मान लो HDFC है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, ICICI बैंक है, राइट, कर्नाटक बैंक है. ये सारी बैंक आपने देखे हैं, नाम सुने. उसमें सबसे ज्यादा नाम आपने 2 सुने हैं, HDFC एंड ICICI. एक्सिस का भी नाम सुना होगा आपने. तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है. भले वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन उसको RBI के हिसाब से काम करना पड़ता. अपने कायदे कानून नहीं चलते. RBI की जो गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता है. दूसरी तरफ सरकारी बैंक होते हैं, गवर्नमेंट, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है. वो सबसे बड़ी बैंक हम बोलते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. फिर देना बैंक है, राइट. फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है. ये सारी जो बैंकें हैं वो सब सरकारी बैंक है, which is falling under government, directly by government, right. And third section जो है वो कोऑपरेटिव बैंक है. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एज पर कोऑपरेटिव एक्ट 1958 हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोऑपरेटिव बैंक लगाई गई थी. मान लो हमारे भावनगर है तो आपने देखा होगा भावनगर में भी एक बैंक है जिसका नाम है भावनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. आया समझ में? भावनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. आया समझ में? तो ये बात ऐसे हुई, बराबर है. तो ये बैंकिंग की बात हुई. फिर रेलवे है, कम्युनिकेशन है, BSNL, अभी तो वो बंद हो गया. पोस्ट एंड टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस जिंदा है, टेलीग्राफ ऑफिस बंद हो गई. दे इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट. फिर स्टेट लिस्ट. स्टेट के खाते में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, बट इट इज लिमिटेड टू स्टेट. गुजरात स्टेट का जो डिपार्टमेंट हो वो गुजरात के लिमिट है, वो महाराष्ट्र स्टेट में दखलगिरी नहीं करेंगे. महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है वो मध्य प्रदेश में दखलगिरी नहीं करेंगे. हर एक स्टेट अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल के बैठा है. ऐसा समझ में? द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेज ऑफ 66 सब्जेक्ट्स. स्टेट के पास 66 पोर्टफोलियोज होते हैं, राइट. द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेज ऑफ दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस कैन पास अ लॉ. कायदे 2 तरह के बनते. एक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कायदे बनते हैं जो देश में लागू होते हैं, पूरे देश में. और कई कायदे ऐसे होते हैं जो विधानसभा में बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं, वो स्टेट में लागू होते हैं. तरह के गुजरात विधानसभा ने कोई कायदा बनाया तो वो कायदा गुजरात में लागू होगा.
पार्लियामेंट में जो कायदा बना वो गुजरात में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा, लेकिन गुजरात का जो कायदा है वो राजस्थान में लागू नहीं होगा, क्योंकि वो गुजरात सरकार ने बनाया है, वो शायद राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया है। आया समझ में? Subjects like law and order, state government, institutions, agriculture and irrigation, health, land, interstate trade and commerce are included in it. ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। आया समझ में? If there is a failure of law and order in the state, the union government with consent or against the will of the state government can use reserve police force. अभी जो बंगाल का इलेक्शन आया था तो बंगाल में हिंसा, ऐसा बहुत खराब माहौल था, तो एसआरपी की टीम भेजी गई थी, रिजर्व पुलिस भेजी गई थी, सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया था। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी तरह से खराब है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, परिस्थिति काबू बाहर जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सुपरसीड करके सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे डिसीजंस अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि उसको सब मेंटेन करना होता है। आया समझ में? Then it comes to concurrent list, means mixture of both the department. In addition to this, the Constitution provides for the third list, that is called the concurrent list. उसको हम बोलते हैं concurrent list, right? Which consists of subjects of common concern. स्टेट और सेंटर दोनों साथ में है। बोथ टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों साथ में मिलके वो डिपार्टमेंट चलाते हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या स्टेट, दोनों का इकट्ठा डिपार्टमेंट होता है वो, राइट? द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। स्टेट को अगर कुछ लॉ पास करना है तो सेंटर का मशवरा करते हैं, सेंटर को कोई लॉ पास करना है तो वो स्टेट को पूछते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। है समझ में? द कॉन्करेंट लिस्ट है 47 सब्जेक्ट्स। ऐसे कितने डिपार्टमेंट है? 47 डिपार्टमेंट, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंबाइन चलाते हैं। Am I clear, children? This list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade planning, etc. तो ये जो सारे डिपार्टमेंट है वो सेंटर और स्टेट इकट्ठे चलाते हैं। जो चौथा काम है, राइट, फोर्थ पार्ट, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूअरी पावर। Explain what is meant by residuary power. Let us say these subjects, the subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary power. They are included in residuary power. They are not connected directly to state alone. They are not connected to center directly alone. It's a combination of both. But it cannot be said concurrent. दोनों से अलग भी है और जुड़े हुए भी होते हैं, right? Matters that are not included in the division of powers. जो powers यूनियन लिस्ट में नहीं है, जो powers स्टेट लिस्ट में नहीं है, जो powers concurrent लिस्ट में नहीं है, फिर भी कई सारे ऐसे एरियाज है जिसमें काम होता है, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर, मीन्स बचा कुचा। रेसिड्यूअरी मीन्स बचा कुचा, साइंस में उसको ऐसा बोलते हैं। आया समझ में? इट इज कॉल्ड रेसिड्यूअरी पावर। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन
the power to legislate on these residuary subjects. Right? The central government takes major decision regarding these residuary subjects. Okay? The financial distribution of resources is done between union government and state government. मान लो ये जीएसटी है, तो आपने कोई बिल देखा होगा, हम जीएसटी जो पे करते हैं उसका 2-3 बंटवारा होता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएस, ऐसा होता है, बराबर? आईजीएसटी का मतलब होता है अलग, सीजीएसटी का मतलब होता है अलग, सीजीएसटी का मतलब अलग होता है. तो वो सेंटर और स्टेट दोनों अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट होता है. सेंटर का फॉर्मेट सही होता है, गुजरात के लिए फॉर्मेट अलग होता है, राजस्थान के लिए अलग होता है, पंजाब के लिए अलग होता है, क्योंकि कायदे कानून लोकल अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से वो फॉर्मेट बनाया जाता है. राइट? द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सच एज कस्टम्स एंड एक्साइज, क्योंकि सारे स्टेट में अलग अलग व्यापार धंधे होते हैं, तो कस्टम एक्साइज भी अलग अलग होती है. कोई से स्टेट में एक्साइज ज्यादा, मान लो ये पेट्रोल डीजल के भाव है, उसके दाम में एक्साइज अलग अलग है. गुजरात में जितनी एक्साइज है पेट्रोल डीजल पे, शायद राजस्थान में उससे कम है, गोवा में सबसे कम है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है. तो मान लो गुजरात, अभी पेट्रोल हमारे 97 रुपीज है, तो महाराष्ट्र में वही पेट्रोल 107-108 रुपये लीटर बेचा जाता है, क्योंकि ज्यादा एक्साइज है. अंडरस्टूड? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि सारे स्टेट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग अलग होते हैं, किसी को ज्यादा होते हैं, किसी का कम होते हैं. राइट? इनकम टैक्स, टैक्स पेयर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसा व्यापार धंधा इतना टैक्सेशन. राइट? इनकम टैक्स, ऑल दीज मेजर टैक्सेस आर डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सारे स्लैब, एक्साइज क्या होगी, कस्टम क्या होगी, इनकम टैक्स क्या होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नक्की करते हैं. उसमें से राज्य को भी हिस्सा मिलता है. राइट? वाइल सेल्स टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, हम जो जमीन मकान के दस्तावेज बनाने जाते हैं उसको रेवेन्यू टैक्स बोलते हैं. वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ना, पैसा देना पड़ता है, ड्यूटी जिसको बोलते हैं, वो स्टेट में जमा. मान लो कि आपने 10 लाख का मकान लिया, तो 2 लाख रुपए का स्टैंप पेपर लेना पड़ता है, बराबर है? तो मान लो कि वो 2 लाख के आप स्टैंप पेपर, उसकी कीमत होती है मान लो 50,000 रुपया, तो वो 50,000 रेवेन्यू बोलते हैं. है समझ में? रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये जो सारे मनोरंजन पार्क है, आप देखिए वाटर पार्क है, थिएटर्स है, ये सब होते हैं, उस पर भी टैक्स लगते हैं. वो सब सेंट्रल, वो सब स्टेट अपने आप के हिसाब से नक्की करते हैं. एजुकेशन टैक्स, अभी आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो बेटा, तो प्राइवेट स्कूल को भी टैक्स भरना पड़ता है. सारी स्कूल के अलग अलग टैक्स होते हैं, बराबर है? अलग अलग मीडियम के अलग, सारे स्टेट में ऐसे अलग अलग होते हैं. हैविंग मर्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें बहुत सेंटर को दिक्कत नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नक्की करती है, स्टेट गवर्नमेंट नक्की करती है. देन कम्स टू यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. मान लो कोई क्राइसिस खड़ी हुई, तो उस वक्त सेंटर का रोल क्या होगा, स्टेट का क्या रोल होगा, वो देखते हैं. नेशनल इमरजेंसी, देयर आर 3 प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी. एक लेक्चर में मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया था ना. 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में जाहिर की थी. बताया था मैंने आपको एक लेक्चर में, शायद वो लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा, आप नेट पे भी सर्च कर लेना. There are 3 types of emergency provisions, right? Number 1, national emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं. मान लो भारत पाकिस्तान का वॉर हो गया, आर्मी ने बगावत कर दी, तो प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट सिग्नेचर कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. राइट? नंबर 2, due to law and order breakdown, the state cannot function according to constitution, so constitutional emergency is declared.
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बारे में देश में इमरजेंसी ठोकी जाती है, जो इंदिरा गांधी ने किया था। पूरे देश में 2 साल तक इमरजेंसी रही। स्टेट में भी ऐसा हुआ है, कई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू, अगर ऐसा होता है तो उधर की सरकार को बर्खास्त किया जाता है और सारी सत्ता प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। प्रेसिडेंशियल रूल जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं। आया समझ में? ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइसेस देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू इरोजन, इन दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। थैंक गॉड, इतनी महंगाई के बावजूद भी इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, काफी फाइनेंशियल रिजर्व्स है, गोल्ड रिजर्व्स है, तो ये दिन का हमको सामना नहीं। ऐसी हालत 1991 में हुई थी। वो आपने स्कैम सीरीज देखी ना अरशद मेहता के वक्त, उसके पहले जब लिबरलाइजेशन का जमाना आया तब भारत कंगाल बन चुका था। उस वक्त ऐसा लगता था शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, लेकिन भगवान की मेहरबानी से ये नहीं हुआ था। ड्यू टू इंक्रीजिंग प्राइसेस there is a monetary value erosion of that and financial emergency can be declared. And fourth, the central government has given more power to deal with this emergency. Basically, emergency के वक्त सारी सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी सत्ता चली जाती है, स्टेट निष्क्रिय हो जाता है। मतलब सेंटर का रूल, प्रेसिडेंट का रूल लागू होता है, राइट? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया टर्न्स इनटू यूनिटरी सिस्टम, पूरा यूनिट बन जाता है हिंदुस्तान। उस वक्त पंजाब नहीं रहता, उस वक्त गुजरात नहीं रहता, उस वक्त महाराष्ट्र नहीं रहता, उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान रहता है, भारत रहता है, इंडिया रहता है समझ में? तो ये आज के टॉपिक थे। ओके बच्चों, नाउ it is your time to take your homework. So let us get some questions of homework. Come on, children. Question number 1. What is meant by single citizenship? What is meant by single citizenship? Question 2. Mention in brief. आपको सही मायने में रखना है। About number 1 union list, number 2 state list, and number 3 concurrent list. Right? Number 3, what is meant by residuary power? What is meant by residuary power? ये जो 3 क्वेश्चंस है, बराबर है? नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय सिंगल सिटीजनशिप? मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, आज भी वापस बोल रहा हूं ताकि वो पक्का हो जाए। नंबर 2, मेंशन इन ब्रीफ। इन तीनों के बारे में आपको मटेरियल में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, वो लिखिए। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय यूनियन लिस्ट, you have to explain what is meant by concurrent list and what is meant by concurrent list.
दो दो तीन तीन लाइन है. ओके. एंड थर्ड वन, व्हाट इज मीन बाय रेसिड्यूरी पावर. एक क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया, व्हाट इज मीन बाय इमरजेंसी, नेम द टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. वो मैं अगले टॉपिक में ले लूंगा, बिकॉज देयर इज नो स्पेस टू एंड राइट. सो अल्टीमेटली this was the thing. I hope you enjoyed this lecture. We have studied about 3 topics: strong federal structure with center and state combined together, demarcation of boundaries of state and center, मतलब ये जो concurrent list और union list वो मैंने पढ़ा. और फिर तीसरा टॉपिक था इमरजेंसी के बारे में. What is meant by emergency? The types of emergencies, right? इमरजेंसी कैसे लागू होती है, कौन सी प्रकार की इमरजेंसी होती है. तो ये था हमारा 5th लेक्चर. We are coming to an end to this 5th lecture. In 6th lecture, we'll study about parliamentary system, independent judiciary system, amendment in constitution, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, वो तो मैंने आपको बताया ही है. सेक्युलरिज्म के बारे में बात करेंगे, जुडिशरी के बारे में वो आपको डिटेल में, वो नया टॉपिक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो अगला लेसन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और सब उसके बारे में हम बात करेंगे. तो आज के लिए बेटो इतना ही है. राइट. एंजॉय योरसेल्फ एंड complete your work. Okay children, so see you in next lecture. Till then, goodbye, take care.